Welcome to my YouTube channel Gadget Capsule. Today I have a video on current affairs. I will cover current affairs from June 2020 to March 2021, plus one additional video on Jammu and Kashmir current affairs, right? So it is helpful for all JKSSB exams which are going to held in 2021. Friends, after analyzing more than 10 papers of JKSSB, I found JKSSB current affairs is more about facts like who received this award. So, keeping this trend in mind, I have compiled current affairs with the demands of JKSSB. This is the part first, and I expect three more videos on this. So if you are new on my channel, please do subscribe and share this video with your friends, right? I am providing every possible help to plug your loopholes, so please do subscribe for future updates. Friends, let us start today's video, that is about current affairs. So before going to main content of this video, let me quote this. खुद से वादा अपने पे भरोसा मजबूत इरादा. दोस्तों, दिस इज द बेस्ट कोट दैट आई हैव सीन फॉर एवर. सो दैट मीन्स खुद से भी वादा होना चाहिए, अपने पे भी भरोसा होना चाहिए और मजबूत इरादा भी होनी चाहिए. दैट मीन्स यू हैव टू प्रॉमिस विद योर सेल्फ दैट आई हैव टू डू दिस. एंड अपने पे भरोसा, दैट मीन्स यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस, या आई कैन डू दिस. एंड मजबूत इरादा मीन्स you should have the consistency in your dreams, right? So let us discuss the current affairs compilation. दोस्तों, I have made bullet pointers, so make a note. If you make a good note out of this, it will be helpful to crack this JKSSB exam. First point is here, Pradhan Mantri. दोस्तों, let me tell you one thing. I have taken this current affairs compilation. Let me tell you the source. One is the Vision IAS monthly booklets, plus internet and Indian Express. I am following Indian Express from 2016. I have made some notes, so I have taken some pointers from Indian Express. So please, I have worked hard to make this compilation, and now it is your responsibility to share with maximum candidates, right? दोस्तों, first point is Pradhan Mantri Awas Yojana. That means this is not the, let me tell you one thing, this is not the current related topic, but somehow it is related to current, though the scheme was launched earlier. Now still it was in the news, so I found it useful to mention it here, maybe. So first point is प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल. दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इट इज़ हाउसिंग फॉर ऑल, यानी हाउसिंग वाली स्कीम है. इसमें बिलो पॉवर्टी वाला जो भी होगा, तो उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक एड मिलता है 1 लाख का, सो दैट ही कैन मेक ए पक्का हाउस. तो इसका जो हाउसिंग फॉर ऑल मंत्रा है 2020. आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि इसका डेट कब तक होगा, तो आपको पता होना चाहिए 2022. तो दूसरा पॉइंट है वर्चुअल सबमिट वाज हेल्ड फॉर. तो दोस्तों, ड्यू टू कोविड-19, तो देयर वाज नो फेस टू फेस मीटिंग्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सो दे स्विच टू वर्चुअल मोड. दैट मीन्स G20 ने भी वर्चुअल सबमिट की. सार्क प्लस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. दोस्तों, G20 किस साल में बनी, तो आपके लिए क्वेश्चन है सार्क और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर. हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन जो है, उसमें हमारे 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं, 5 आर परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट. ये जो परमानेंट हमेशा होते हैं, ये जो 10 होते हैं फॉर 2 ईयर्स, राइट.
तो इस टाइम इंडिया को इलेक्ट किया है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी 2021 और 2022 एंड तक हैं। तो ये इसकी 8th टर्म है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके बाद वन मोर पॉइंट इज़ कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 bought under urban cooperative banks and multi cooperative banks अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ RBI। दोस्तों ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स या मल्टी कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे ये RBI के अंडर नहीं आते थे पहले, क्योंकि उनका स्टेट का लॉ था, तो दैट इज़ वाई ये RBI के अंडर नहीं आते थे। तो बट ड्यू टू देयर पुअर परफॉर्मेंस इन लैंडिंग प्लस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो RBI ने अब क्या किया कि उन्होंने RBI ने इस पर रेगुलेशन स्टार्ट की, ठीक है दोस्तों। एक ऑर्डिनेंस लाया 2020, तो अब RBI इनको भी रेगुलेट करेगा दोस्तों। वन मोर पॉइंट इज़ हियर RBI अनाउंस्ड क्रिएशन ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसने अनाउंस किया, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट RBI, राइट दोस्तों। तो वर्ल्ड नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा कि 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया UNCTD, ठीक है दोस्तों। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया, UNCTD। तो उसके बाद हमारा पॉइंट है US हैज़ लार्जेस्ट, यानी जो इंडिया में FDI आता है सबसे ज़्यादा US से आते हैं, उसके बाद चाइना, देन सिंगापुर, आपको याद रखना है। इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व। हाँ दोस्तों, जो रिजर्व्स हैं इंडिया को 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं कोल के, और साथ ही साथ इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना भी है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियाज़ फर्स्ट गैस एक्सचेंज, यानी इंडियन गैस एक्सचेंज वाज लॉन्च रिसेंटली एज होली ओनर्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हाँ, फर्स्ट गैस एक्सचेंज ये तो सब्सिडरी है किसकी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये पॉइंट्स अच्छे हैं, तो मैंने काफ़ी मेहनत के साथ बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको फ़ायदा मिले, या अपने कापी में नोट करिए। अदरवाइज़ अगर वीडियो 1-2 बार देखोगी तो मुझे लग रहा है यू कैन गेस इन एक्चुअल एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनल कमोडिटी। हियर इज नेक्स्ट पॉइंट नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज अनाउंस्ड द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स कॉल्ड एग्रीडेक्स सॉरी। तो जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज उसने ये अनाउंस किया कि एग्रीडेक ये एक फ्यूचर इंडेक्स है, इंडेक्स कॉल्ड एग्रीडेक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड इंडेक्स है ये, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लोन वुल्फ अटैक हो गया। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो यू माइट हैव एनकाउंटर्ड दिस लोन वुल्फ अटैक इन लंदन। हाँ, ये जो मैं अभी ये जो बता रहा हूँ ये जून की बात है, जून जुलाई अगस्त का ही है, फिलहाल मैंने इन 2-4 महीनों का ये कवर किया यहाँ पे। तो वहाँ पे लोन वुल्फ अटैक हो गया था लंदन में। लेट मी टेल यू कि ये जो लोन वुल्फ अटैक है, व्हाट इज़ लोन वुल्फ अटैक, बेसिकली लाइक कि अगर हम देखें कि ISI जो होता है कि it is difficult to penetrate in London or to cross the borders of London. So what they do, they train some individuals that might be residing there in London or US. So उनको थोड़ा ट्रेनिंग, लिटिल बिट ट्रेनिंग मिलती है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल होता है या सुसाइड बम्बर इन द फॉर्म ऑफ सुसाइड बम्बर या इन द फॉर्म ऑफ कि एक गाड़ी लेके क्राउड में जाएगा, तो ऑब्वियसली कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो दिस इज़ कॉल्ड लोन वुल्फ अटैक, ठीक है दोस्तों।
तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो आई विल मेंशन व्हेन एवर देयर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे ये पॉइंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है 1989 में इसको एस्टैब्लिश किया है दोस्तों। ये न्यूज़ में था क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ग्रे या ब्लैक लिस्ट में आते हैं, तो ऑब्वियसली it is in the news, so I found it feasible to mention it here. So this is a financial action task force that was established in 1989। तो दोस्तों इसके दो लिस्ट होते हैं, ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग तो आर मनी लॉन्ड्रिंग। पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लॉन्च था, बट when in 2020 in 2004 when USA was attacked, at that time टेरर फाइनेंसिंग वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान के रिलेटेड ही न्यूज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। तो उसके बाद साइक्लोन एम्फान हिटेड इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपने सुना होगा कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल साइड से इसने हिट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे सुंदरबन वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव है, वेस्ट बंगाल में है ये। तो मतलब वेस्ट बंगाल में ये वेस्ट बंगाल हाईएस्ट मैंग्रोव्स। तो उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा है होते हैं दोस्तों। ये जो सुंदरबन है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव है, याद रखना। तो हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई ने डेवलप की इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई कॉल्ड आई फ्लूज मुंबई। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फ्लड्स आने की वार्निंग देती है ये ऐप, इट इज़ आई फ्लो मुंबई। ठीक है, किसने बनाई? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्लस मुंबई। तो सेम हियर इज़ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने एक डेवलप की कंट्रीज फर्स्ट लिचन पार्क। हाँ, फर्स्ट लिचन पार्क इन मुनस्यारी उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पेपर्स देखे हैं, देन आई मेड दिस कंपाइलेशन फॉर यू। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनेस्को रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020। तो अगर आपको ये दिया गया होगा, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, तो आपको पता होनी चाहिए, यूनेस्को ने। तो उसका टाइटल भी मैंने यहाँ पे रखा, इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट इंडिया रैंकिंग 2020 अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज रिलीज्ड बाय। हाँ दोस्तों, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको फ्रेम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली दफ़ा 2015 में इसको लॉन्च की थी। तो इस टाइम आईआईटी मद्रास ने इसको टॉप किया। तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की थी सेकंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। गुजरात ने इसमें टॉप किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन। ठीक है दोस्तों, प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथोराइजेशन सेंटर यानी एस्टैब्लिश किया, सो दैट प्राइवेट सेक्टर कैन पार्टिसिपेट। है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज हियर गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिक्लेरेशन ऑफ खुशीनगर एयरपोर्ट इन यूपी एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको डिक्लेयर किया गया। ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भी ये क्या करता है कि ये इट प्रोवाइड्स फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रेजुएट्स, यानी फ्रेश इंटर्नशिप फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है दोस्तों, टुलिप पोर्टल। तो उसके बाद यहाँ पे कैंपेन टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म है लॉन्च्ड टू एम्पावर एमएसएमईज ग्रीवियंस, यानी मीडियम एंड माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रीवियंस को एनहांस करने के लिए ये जो कैंपेन टेक्नोलॉजी पोर्टल ऐसे लॉन्च किया। सहाकार मित्रा फॉर पेड इंटर्नशिप, ये भी एक ऐप ही है, यानी एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हो।
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो रिलीज़ किया है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो इसमें टॉप किया सिंगापुर ने। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद है यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अक्सर बेशतर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि ये प्राइज़ किसने लिया। ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 रतन लाल ने लिया ये। तो ये अवार्ड किस में है? क्रिएटेड बाय नोबल लॉरेट नॉर्मैन बोरलॉग 1986 में, टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट्स एंड अदर्स हु हैव इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है दोस्तों। तो इस बार रतन लाल ने लिया। कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया। मे बी दिस इज awkward टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट JKSSB sometimes asks questions like this. These are like odd questions. डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्विटर और FB हैंडल सस्पेंड किया गया, क्योंकि बिकॉज आपको रीज़न भी थोड़ा पता होना चाहिए कि उसने कुछ वायलेंस प्रमोट की थी कैपिटोल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है। तो उसके बाद हमारा ये यहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय येल यूनिवर्सिटी, ये 12th एडिशन है इसका। ठीक है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अनाउंस्ड नागरवैन स्कीम। नागरवैन स्कीम किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नागरवैन स्कीम लॉन्च की। ये इसका एम यही है कि डेवलपिंग 200 अर्बन फॉरेस्ट्स अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है नागरवैन। हाँ, इसके बाद इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सुखना लेक डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन। दोस्तों, आपको रामसार कन्वेंशन आपने पढ़ी होगी एनवायरनमेंट में, जो ईरान 1971 में हेल्ड हुई थी। तो ये जो लेक है चंडीगढ़ में है, तो और एक मैन मेड लेक है, सुखना लेक डिक्लेयर्ड वेटलैंड। तो उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए रमसन मैग्सासा अवार्ड, जो जिसको हम एशियन नोबल प्राइज़ भी बोलते हैं। तो इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 1957 यहाँ पे दिया गया है। तो इस ईयर ये कैंसिल किया गया है ड्यू टू द कोविड-19। और आपको ये भी याद रखना है किस किस फील्ड में ये रम्स अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ जर्नलिज्म, लिटरेचर, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप। ठीक है दोस्तों। नाउ वर नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, उत्तराखंड गवर्नर गेव असेंट टू मेक गैरिसन एज उत्तराखंड समर कैपिटल। याद रखना इस पॉइंट को दोस्तों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने ये रखा है, दो इट इज़ नॉट करंट बट आई फाउंड इट गुड, दैट इज़ वाई। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेसड 1986 एक्ट। ठीक है दोस्तों। जो नया एक्ट है, तो इसमें न्यू एक्ट प्रोवाइड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक सेंट्रल बॉडी होगी वहाँ पे, और साथ ही साथ ई काम को भी कवर करती है, प्लस सिंगल पॉइंट एक्सेस टू जस्टिस भी है। तो जो हरियाणा कैबिनेट है, उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें 75% आप जॉब मिलेगी लोकल्स को इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है दोस्तों। जो 15th EU इंडिया की सबमिट थी, ये भी वर्चुअल हुई 15th। बस मेरा मतलब यही था कि 15 आपको पता होनी चाहिए, 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन सबमिट। तो इंडिया मेड ए चाबार पोर्ट, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चाबार पोर्ट के रिलेटेड एक न्यूज़ थी ईरान में कि ईरान ने कुछ ईरान का कुछ इशू था इसमें। तो मैंने सोचा ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। चाबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया ईरान में। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 का रिलीज़ किया UNDP एंड ऑक्सफोर्ड ने। तो इसकी जो स्केल होती है दैट इज़ 0 to 1, यानी अगर आपका 1 वैल्यू होगा दैट मीन्स हायर पॉवर्टी होगी, 0 होगा दैट मीन्स जीरो पॉवर्टी, आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों। तो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वी एंडेड हियर, या नाउ दिस पॉइंट इज द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ ऑन नॉन पर्सनल डाटा। तो यहाँ पे एक कमेटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, गोपाल कृष्ण कमेटी, हियर इज गोपाल कृष्ण कमेटी। तो ये जो गोपाल कृष्ण कमेटी है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने उसको ये टास्क दी थी कि यू जस्ट डिफाइन इम्पर्सनल डाटा। ठीक है, पर्सनल डाटा तो श्री कृष्णा कमेटी ने डिफाइन किया। नाउ द टास्क ऑफ दिस कमेटी इज टू डिफाइन नॉन पर्सनल डाटा। ठीक है दोस्तों। तो वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट हियर, गवर्नमेंट लॉन्चड ग्रीन एजी प्रोजेक्ट टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया ग्रीन एजी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो रहा है हमारा।
सो वी आर क्राइंग फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे इटलिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मैंने ये रखा है, आपको लग रहा है कि ये करंट अफेयर्स नहीं होगा, बट इट इज़ रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इट कम्स अंडर द अर्थक्वेक प्रोन जोन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट is reluctant to give permission to make this dam, that is why I put it here. So next point is फोर्थ टाइगर। हाँ इंपॉर्टेंट है, जो टाइगर सेंसस है 2028 रिपोर्ट शोज दैट जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी यानी 2967 तक। ठीक है, तो एमपी की हाईएस्ट यानी टाइगर्स हाईएस्ट जो है एमपी स्टेट में, उसके बाद कर्नाटका में। जो फर्स्ट टाइगर सेंसस स्टार्ट हुई थी 2016, तो हर 4 साल के बाद इसको कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज लैंसेट हैज़ प्रोजेक्टेड दैट वर्ल्ड पॉपुलेशन विल पीक 2064। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिहाजा प्लीज़ रिमेंबर दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो यहाँ पे फाइनेंस, क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, तो दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स यहाँ पे है, प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रैंक्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एनुअल प्लान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स है। जर्नली अगर मुझे भी पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रिपेयर किया होगा या आरबीआई या नीति आयोग, बट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। ऑपरेशन समुद्रा सेतु टू ब्रिंग इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग। जी दोस्तों, कोविड के दौरान बहुत सारे हमारे सिटीजन्स अलग अलग देशों में थे, तो टू ब्रिंग देम बैक गवर्नमेंट हैव लॉन्च्ड दिस ऑपरेशन समंदर सेतु। तो यहाँ पे कुछ नेवियल इंडियन नेवी के बंदे गए थे, तो उनको यहाँ पे लाया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज जर्मनी टू बिकम फर्स्ट मेजर इकॉनमी टू फेज आउट कोल न्यूक्लियर पावर। हाँ दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स द जीरो इमिशन, तो इसलिए जर्मनी भी फर्स्ट स्टेट बन गई जिसने कोल न्यूक्लियर पावर एलिमिनेट किया। दोस्तों, इंडिया में सेटल हुई है 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, राइट दोस्तों। now we are pushing towards the renewable energy, like we have a target of 175 gigawatts। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक किया। तो अर्थ मिनिस्ट्री लॉन्चड मोबाइल ऐप मौसम। ठीक है दोस्तों, मौसम यहाँ पे ये लाइक कि आपका जो वेदर का प्रेडिक्शन होगी, तो इट इज़ पॉसिबल विद दिस ऐप। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गई जिसने 100% एलपीजी कनेक्शन दिए। दोस्तों, इसके लिए कुछ स्कीम्स थी, लाइक यू हैव ए प्रधानमंत्री, हाँ एलपीजी स्कीम के लिए एक उज्ज्वला स्कीम थी। ठीक है दोस्तों, तो कश्मीरी सैफरान का जीआई टैग दिया गया है, यहाँ पे मैंने रखा है इसको। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की कि एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी बनाई जाएगी, तो जो मतलब नॉन गेजेटेड पोस्ट्स, जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट्स होगी गवर्नमेंट की, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। ठीक है, इन 12 लैंग्वेजेस। तो जो भी वहाँ पे आपका स्कोर आएगा दैट विल बी वैलिड इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में आप कहीं पे भी उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुआ बिटवीन यूएई एंड इसराइल, तो इसमें जो आर्बिट्रेशन की थी दैट वाज द यूएसए। तो इन दिस अकॉर्ड मतलब बोथ कंट्रीज आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए फॉर्मल रिलेशन लाइक डिप्लोमेसी टाइप। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीति आयोग का रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2020। ठीक है दोस्तों, टॉप किया गुजरात ने। द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु रिसेंटली तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। हाँ, रिसेंटली तमिलनाडु ने एक एक्ट पास किया, तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कुछ माइनिंग वगैरह नहीं की जाएगी, तो इट इज़ होली एंड सोली फॉर एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों यहाँ पे है हमारा पॉइंट, मिनिस्ट्री जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है सिलेक्टेड
अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नागर वैन। यानी हमने पीछे भी ये पढ़ा कि नागर वैन जो एक स्कीम है दैट इज़ गोइंग टू कवर्ड 500 अर्बन एरियाज फॉर अर्बन फॉरेस्ट्री। नाउ फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ इन आंध्र प्रदेश, राइट दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया फर्स्ट स्नो लीपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया फर्स्ट स्नो लीपर्ड, क्योंकि स्नो लीपर्ड अक्सर बेशतर इन हिमालय स्टेट्स में पाया जाता है। तो ओबियसली ओवर स्टेट फॉल्स इन द हिमालयाज, इन दिस वे इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे इंडिया फर्स्ट स्नो लीपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में एस्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे नेशनल, आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया हेल्थ मिनिस्ट्री ने। तो अंडर दिस यू विल बी, मतलब पेशेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद हेल्थ आईडी, ताकि उनका जो पास्ट का जो भी डायग्नोसिस वगैरह होगी तो दैट शुड बी इन स्ट्रीम लाइन। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने एक लॉन्च की ट्राइबल न्यूट्रिशन पोर्टल स्वस्था, हाँ स्वस्था। तो यहाँ पे जोमेटो जो है यार दोस्तों, ये एक जोमेटो इज़ ए जिस कंपनी है, आई थिंक ये एक फूड ऑर्डर करते हैं हम जनरली, तो फूड प्रोडक्शन कंपनी है। तो इसने एक अनाउंस किया कि जो भी पीरियड्स के दौरान, यानी जो भी फीमेल स्टाफ वहाँ पे होगा, दे विल बी प्रोवाइडेड 10 days लीव इन ए ईयर। ठीक है, तो दैट टू पेड लीव, यानी उनको कुछ भी पैसे नहीं कटेंगे। यहाँ पे है ग्रामोद्योग विकास योजना है, उसने अप्रूव किया है एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिजन इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अगरबत्ती। ग्रामोद्योग विकास, अगरबत्ती जो बनाते हैं। हरित पाथ एक मोबाइल ऐप है जो फैसिलिटेट करेगी ग्रीन हाईवेज अक्रॉस द कंट्री। ये डेवलप की थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे माउंट सिनाबुंग वाल्कनो है इंडोनेशिया में। इसमें रिसेंटली ये यूरोप हो गया, मे बी फिजियोग्राफी में आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका फिजियोग्राफी में ये क्वेश्चन बनता है वायर इट इज़ लोकेटेड। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये केरला में एस्टैब्लिश किया गया है कि सो दैट द वुमेन कुड मूव फॉरवर्ड इन द बिजनेस। ठीक है, टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों कोविड के दौरान हम आजकल हम कोविशील्ड वैक्सीन यूज़ करते हैं टू मिटिगेट द कोविड इशू। सो एक्चुअली ये जो वैक्सीन है इट इज़ मेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने ये ओरिजिनली बनाया। नाउ इंडिया हैव डिमांडेड कि हमको भी थोड़ा इसमें कुछ बताइए हमें। फिर उन्होंने ये उसकी फार्मूला शेयर की थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी पुणे में जिसका हेडक्वार्टर है। तो सीरम अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया में। तो और दूसरा हमारा कोवैक्स है जो प्रोड्यूस करते हैं भारत बायोटेक। ठीक है दोस्तों ये पहला सेट हमें कंप्लीट हो गया। होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा। तो हियर आई एंड दिस वीडियो। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो शेयर करने में। तो अगर मैंने मेहनत की तो हर किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे करंट अफेयर्स में, दैट इज़ सफिशेंट फॉर मी एज वेल एज यू, क्योंकि 3 क्वेश्चंस मेक बिग डिफरेंस। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप्स वगैरह होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो हर किसी के साथ शेयर कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मेरा जो वीडियो है दैट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो इन दिस वे आई विल मेक मोर बेनिफिशियल वीडियोस फॉर यू। कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेल दूंगा, तो उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर किसी जगह पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी विदाउट हेजिटेशन। और दोस्तों I have uploaded 2 sets of MCQs, one on computer and another on GK with special reference to Jammu and Kashmir. The standards of both sets is up to the mark, so please watch them. Link will be provided in description box. Thank you for watching.